औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. How are you all? I do hope that you will be fine and all okay by the grace of Allah Almighty. So, dear students, today we are going to study about the non-verbal intelligence test number 12, which has been prepared specifically by the faculty of the Shine Leaders Academy, Rawalpindi, for the information and the knowledge of the general public, as well as all those aspirants and the students, males and females, who have already applied in the Pakistan Defense Forces to be a commissioned officer, or the junior commissioned officers, or the airman, or the civilian, or in any cadre, wherever these intelligence tests are required. So gentlemen, these intelligence tests and the lectures based on these intelligence tests and the questions selected from the previous 5 papers have been specifically selected in this video, which is known as intelligence test number 12. And inshallah, such questions which have come repeatedly in your previous papers, now here in this video lecture, these would give you a great information about the certain tests which are coming ahead, inshallah, before going to take your examination of Pakistan Air Force, Army, or Navy, to be a commissioned officer, or the airman in Pakistan Air Force, sailor, or you can say civilian or marine in Pakistan Navy, or civilian in Pakistan Air Force. So these video lectures, which has been prepared by the Shine Leaders Academy, would ultimately will assist you people to be successful 100% in your forthcoming test. So gentlemen, we shall proceed to our test here, and we shall continue on. Assalamu alaikum, dear student. Sorry for this interval, and we shall proceed to our test number 12, non-verbal intelligence test number 12. So gentlemen, if you look here in these pictures, then you will come to know the real questions. Let me select the laser pointer. Here is the laser pointer, and one more is, you can say, the pen. This one is the pen. It's okay. So gentlemen, this is question number 1. Choose the correct options from the following figures. ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ए से लेकर डी तक ये अवेलेबल हैं, ए बी सी एंड डी, और डी के बाद यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 1 में से, 2 में से, या 3 या 4, इनमें से कौन सा आपका जो एक जवाब है वो बनता है। लिहाजा हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, इस पर गौर करते हैं, तो हमें इसका रिप्लाई ज़रूर हमें मिल जाएगा। लेट्स सी हियर, आप ये देख सकते हैं कि एक ऐसी ट्रायंगल थी जो कि इसका यहाँ ऊपर रख दिया गया था, और नीचे आप देख सकते हैं कि ये एक इट इज़ इन शेप ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल इन्होंने रखी, तो ये शेप बनी, और इससे आगे डेवलप होकर जो शेप बन रही है आपके सामने वो ये है। इसके अंदर एक और उन्होंने ट्रायंगल रख दी है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यही पैटर्न जो ए से बी के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न हमने सी से डी के ऊपर करना है। तो हमने करना ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पे नॉर्मली आपके पास एक ऐसी स्क्वायर शेप में मौजूद थी, और उसका जो टॉप था वो बिल्कुल जस्ट लाइक ए ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल को उठा के उसका जो अपर पोर्शन है ये वाला, और एक कंप्लीट ट्रायंगल उन्होंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। तो हम यही करेंगे कि आपके पास ये एक स्क्वायर अवेलेबल है, इसी के अंदर हम एक ट्रायंगल यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ऐसे ये एक ट्रायंगल एडजस्ट करेंगे तो हमें रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये बिल्कुल आपका दुरुस्त जवाब नहीं है। अगर आंसर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और ऑप्शन नंबर 3 देखें तो ये भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में है। और अगर हम देखें तो ये आंसर नंबर 4 जो इसका है, ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है, चूँकि इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट जो हमें रिक्वायर्ड है, इसी पैटर्न पे हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस फिगर को जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। सबसे पहले आप देखें ए, बी, सी और डी। सबसे पहले ए के अंदर आपको एक स्क्वायर मिलता है, बी के अंदर आप देखते हैं तो आपको ये प्लस का साइन मिलता है, और
आप सी के अंदर देखें तो आपको ये स्लाइटली जो थोड़ा सा एक चेंज शेप के अंदर एक स्क्वायर है वो आपको मिलेगा। अब हमने ज़रा गौर से देखना है कि इसके बाद कौन सा सिंबल आएगा। नीचे ऑप्शन नंबर 1 में से कोई आ सकता है, या 2 में से आ सकता है, या 3 में से, या 4 में से। ये हमने ज़रा गौर से देखना है कि हमारे पास इसका जो रीज़नेबल और जो लॉजिकल जस्टिफाइड रिप्लाई है वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम ज़रा गौर से देखें तो चूँकि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस इधर अवेलेबल हैं और हमारे पास एक सेमी क्रॉस जो है वो आप देख सकते हैं, ये आपके पास अवेलेबल है। एक ऑप्शन हमारे पास प्लस में अवेलेबल है, एक ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल एक प्रॉपर जो ज़रब का निशान है क्रॉस का वो अवेलेबल है, एक डार्क बिल्कुल इसी पोजीशन में हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम ये देखना है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे इस जगह पे जिसको हमने प्लेस करना है वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे आपने जो सिंबल्स यूज़ कर ली हैं, एक प्लस की यूज़ की है और अब इसके बाद जनाब आपने एक स्क्वायर यूज़ की है और इसके बाद अल्टीमेटली आपको क्रॉस की जो सिंबल है वो लगानी चाहिए। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ना ए है, यानी कि नंबर 1 है, ना ये नंबर अगर गौर से देखें नंबर 2 है, और ना ही ये नंबर 4 है। और हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। लुक हियर, इट्स एक्यूरेट रिप्लाई। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखें तो एक सर्कल को काट के उन्होंने दो हिस्सों में, एक आधा पीस इन्होंने यहाँ पे लगा दिया हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल उन्होंने काट के यहाँ पे लगा दिया। और अल्टीमेटली नेक्स्ट फिगर के अंदर उन्होंने ये किया कि सी दोनों जो कटे हुए हाफ सर्कल थे इनको सामने जोड़ा तो आपके पास एक प्रॉपर सर्कल बन गया। तो ये सर्कल ऐसे ही अब हमने जिस तरह ये ऑप्शन ए से बी के अंदर हमने मूव किया और इसी तरह हम सी से डी में यही मूव करेंगे। अब आपके पास दोनों इस पोजीशन में अवेलेबल हैं, जिस तरह ये शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, और इनको अगर हम आपस में उल्टा करके आपस में मिलाते हैं तो कौन सी एक शेप है जो डेवलप होती है वो हम देखें। ना आपके पास वो नंबर 1 ऑप्शन डेवलप होता है, ना ये नंबर 2 डेवलप होता है, और ना ही ये नंबर 4 डेवलप होता है। अगर वो ऑप्शन प्रॉपरली सी डी की तरफ हम प्रोसीड करते हैं तो बिल्कुल जो एक्यूरेट रिप्लाई है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को हम गौर से देखें तो सबसे पहले आपके पास एक बिल्कुल ट्रायंगल है और जिसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मैटर नहीं है, बिल्कुल वाइट है। और इस ट्रायंगल को जब आगे मूव करते हैं इस शेप के अंदर तो उसको पूरा अंदर से ब्लैक कर दिया जाता है। कंप्लीट ब्लैक मींस लाइटली ब्लैक आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ आपको वाइट लाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो इसमें आपका ये जो शेप है आपके पास दोनों स्क्वायर्स हैं, ये दोनों स्क्वायर्स हैं और इन स्क्वायर्स को आपने कैसे करना है और आगे इसी तरीके से हम इनको मूव करेंगे। और मूव करने के बाद हमने देखना है कि इंटरनल शेप, जैसे इसके अंदर डिफरेंट शेप थी, अब बाहर सर्कल अब बाहर स्क्वायर था तो अंदर ये शेप बिल्कुल डिफरेंट थी, तो लिहाजा इसके अंदर जब हमने मूव किया तो अंदर वाली शेप बिल्कुल डिफरेंट होगी। लिहाजा जब हम इसको आगे मूव करेंगे डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो अंदर वाला जो स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें हम गौर से देखते हैं तो नहीं ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त जवाब है, नहीं ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त जवाब है, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त जवाब है। अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो दुरुस्त जवाब बनता है जिसके अंदर ये वाली शेप प्रॉपरली वहाँ पे फिट आती है, तो दिस वन इज़ योर एक्यूरेट एंड राइट रिप्लाई for option number D, where the question mark has been placed. So ultimately the right and accurate reply to the question number 4 is option number 3. Now we proceed to the question number 5. Here we see there are certain you can say designs which has been made over there, and you can find out that what is the piece of, you can say, the design which has been made in front of you. It's overall design. You can see here this is the total design which has been made for you, but this portion of your design has been cut down, and this portion has been cut down. Now you are to find out that what is the accurate reply, either A or B or C or D, and what would be the right reply. Now this is your common sense and your power of intelligence to think over. How do you think? Now we see that if these circles are moving like this, and this one is moving like this, and this one is moving like this, and how it should move? It should move like this. So its movement should be like this. We can see that such sample is not available in A option, neither it is available, you can say, sorry, here, but I would like to amend
This is question number 5. We shall go back. This is not the right reply. This is not also the right reply, and this is also the right reply. But as far as this one, you can say option number A is concerned, हमें यहाँ पे इस बिल्कुल प्रॉपर इसका जवाब मिल जाता है। तो ये जो आपका दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने गौर से देखना है कि फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को उठा के, इस ऑप्शन को उठा के 1 को इसके ऊपर रखते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास डिवेल्प हो जाता है। अब हमने देखना ये है कि ये जो अवेलेबल आपके पास ऑप्शन है इसको उठा के हम किसके ऊपर रखें, या हम इसके ऊपर रखें, या हम इसके ऊपर रखें, या इसके ऊपर रखें, या इसके ऊपर रखें। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए ताकि ये वाली शेप आपके पास डिवेल्प हो जाए। ठीक है, दिस इज़ आवर मेन टास्क। तो दरमियान में आपने एक ऐसी चीज़ ऑप्शन नंबर ए में से या बी में से या सी में से या डी में से उठा के यहाँ पे प्लेस करनी है तो हमारा जवाब बन जाएगा। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो वो ये शेप बिल्कुल नहीं बनती है। अगर हम इस वाली शेप को उठा के, ये वाली शेप उठा के इस बी के अंदर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हम कर रहे हैं, बी के अंदर रखते हैं तो फिर भी हमारी ये शेप प्रॉपरली इसमें नहीं बन सकती है, इसमें भी नहीं बन सकी हमारी शेप, और लिहाजा इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो फिर भी हमारी ये शेप जो है वो बनती नहीं है। लेकिन अगर हम इसको उठा के इसी शेप को उठा के यहाँ से अगर इसके ऊपर हम रखते हैं तो हमारी जो शेप है ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करूँ और फिर ऐसे लाइन ड्रा करूँ और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करूँ, ये वाली लाइन है। देख आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा डार्क भी कर रहा हूँ। ये देख लें, अगर हम ऐसे इसको ड्रा करते हैं तो हमें प्रॉपरली जो डी ऑप्शन है ये हमारा दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप देखें, विच वन इज ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा डिफरेंट है जी फॉलोइंग में से, आपने ये चेक करना है। देखें ये शेप बिल्कुल मिलती जुलती है इसके साथ, और ये 2 नंबर शेप जो है ये 3 के साथ मिलती जुलती है। बट ये जो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो 4 है इसलिए ये डिफरेंट है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बाकी तो मिलती जुलती हैं, इसलिए यही डिफरेंट है। आपका जो डिफरेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर रोमन 4 है। ये रोमन 4 जो है, दिस वन इज द डिफरेंट वन। नाउ वी सी अनदर, दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन, दिस इज द क्वेश्चन मार्क जो आपसे पूछा जा रहा है। इसमें इन्होंने ये किया है कि जो आपके पास जो सेंटर वाला था इसको उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको बिल्कुल उल्टे यू की शेप में लेके आ गए, और इसकी भी उन्होंने पूरी जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी थी। ये दोनों उल्टे यू जो थे इस तरह उन्होंने मूव कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी जो सिरा बिल्कुल डिफरेंट साइड पे है, इसका सिरा भी डिफरेंट साइड पे, और इसका भी सिरा बिल्कुल डिफरेंट साइड पे जा रहा है, और इसका भी डिफरेंट साइड पे जा रहा है। तो जिस तरह ये पैटर्न फॉलो हुआ है इसके अंदर, तो ये हमारा ऑप्शन जो थर्ड वाला है 4th में किसके साथ फिट आएगा। अब हमने देखना है अपने ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल हैं, अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा। अब हम गौर से देखें तो कौन सी शेप हम प्रॉपरली, जो दोनों यू हमारे पास, अब दोनों यू शेप में इधर भी नहीं है, दोनों यू शेप इधर भी नहीं है, दोनों यू शेप इधर भी नहीं है, और ये देखें जी ये प्रॉपर एक यू शेप ऐसे बन रही है और एक यू शेप ऐसे बन रही है। ये दोनों हमारे जो दुरुस्त जवाब हैं वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर मौजूद हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पे देखना है कि दो चीज़ें दे दी हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों आपके पास बाहर से स्क्वायर्स हैं, उसके अंदर एक के अंदर आप कह सकते हैं कि दायरा लगा दिया गया है, एक के अंदर मसलस लगा दी गई। अब आपके पास दोनों ये स्क्वायर थे, अब ये अंदर से बिल्कुल खाली हैं, यहाँ से भी ब्लैंक है, यहाँ से ब्लैंक है, लेकिन ये अपन पोर्शन पे एक का उन्होंने कर दिया जनाब दायरा लगा दिया, और एक के ऊपर उन्होंने प्रॉपरली मुसल्लस लगा दी है। अब हम ये देखें कि ये आपके पास एक दायरा था बाहर, अंदर एक उन्होंने कर दिया जनाब इसके स्क्वायर, और दूसरे में भी अंदर स्क्वायर रख दिया। एक आपने उन्होंने दायरा उठाया और एक मुसल्लस यहाँ पे लगा दी। अब हमने आगे से ऑप्शन ये देखना है कि आपके पास लोअर पोर्शन में एक ट्रायंगल अवेलेबल है और जो अपर पोर्शन है उसमें आपके पास एक स्क्वायर अवेलेबल है। अब इसके साथ हमने ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी में जो एक्यूरेट रिप्लाई बनता है वो हमने ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो हमारे पास दुरुस्त जवाब कौन सा है। अब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जो स्क्वायर है बिल्कुल अपनी जगह पे मेंटेन रहे,
और इसके नीचे कम से कम जो मिसिंग शेप है हमारे पास वो एक दायरे वाली मिसिंग है। ऊपर स्क्वायर का रहना चाहिए और नीचे उसको दायरा होना चाहिए। अब ऊपर स्क्वायर इसमें भी नहीं है, ऊपर स्क्वायर इसमें भी नहीं है, ऊपर स्क्वायर इसमें भी नहीं है। ऊपर स्क्वायर है और नीचे दायरा है, तो इस शेप के अंदर अवेलेबल है। आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी टू द क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं। हमने जरा गौर से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पे एक अवेलेबल है और एक यहाँ पे अवेलेबल है। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं और आपके पास जो अवेलेबल है सिर्फ वो एक अवेलेबल है, तो वो है आपके पास तकरीबन एक आप कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप है। बट यहाँ पे देखें, आपके पास एक स्क्वायर यहाँ अवेलेबल है, एक स्क्वायर यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे दायरा आपके पास एक अवेलेबल है। इधर आप देखें, आपके पास एक दायरा है, यहाँ पे भी दूसरा दायरा अवेलेबल है और आपके पास एक ये तिरछा सा आप कह सकते हैं कि बेजवी टाइप बिल्कुल एक शक्ल इसकी बिल्कुल बिगाड़ दी गई है स्क्वायर की। अब यहाँ पे देखें, इसी चेंज शेप के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ आपके पास स्क्वायर सामने आ गया है और आगे आपके पास ये शेप अवेलेबल होनी चाहिए हर सूरत में। इसको हम डबल करेंगे तब जाके हमारा रिप्लाई बनेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो दुरुस्त जवाब है ना ही ऑप्शन नंबर डी है, ना ही ऑप्शन नंबर सी है, ना ही ऑप्शन नंबर ये बी है। तो आपका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको इसका एक्यूरेट रिप्लाई मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे देखें, प्रॉपरली दो एरोज हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, ये एरो इधर मूव कर रहा है, एक एरो इस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर से एरो नीचे आ रहा है, दूसरा इधर भी आ रहा है, तीसरा भी नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक बिल्कुल आपको एक सिंगल बिल्कुल एक लाइन है, एक स्टिक नुमा नजर आ रही है। इसके बाद हमने देखना है कि ऑप्शन ऑप्शन अगला कौन सा आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये डी आएगा। आगे आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में किस चीज़ की मूवमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे इसके बाद इस जगह के ऊपर क्या ऑप्शन आना चाहिए आपका, वो तो हम अगर गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनता। ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर हम गौर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सोचते हैं तो ना ये आपका जो साइड वर्ड्स जा रहा है अपवर्ड साइड पे, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। जो दुरुस्त जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। डियर व्यूअर्स, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। अगर हम इसको गौर से देखें, पहली वाली शेप में आपके पास डबल बी अवेलेबल है, एक ही डायरेक्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे दोनों उल्टी डायरेक्शन पे बी आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक उल्टी है और एक सीधी बी अवेलेबल है और दूसरी दोनों बिल्कुल राइट साइड पे दोनों बी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी दोनों बैक टू बैक जो बीज हैं ये अवेलेबल हैं। इसकी भी बैक टू बैक आप कह सकते हैं, तो दोनों बीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो ब्लैंक शेप है यहाँ पे क्या आना चाहिए। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क को हमने देखना है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, बी के अंदर या सी के अंदर। गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे हम हल करेंगे। अब हम देखें तो आपके पास जो जो उल्टे बी हैं यहाँ पे दोनों सीधी बी होनी चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहती है, एक बी साथ और होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए। स्ट्रेट पोजीशन में बी इस ऑप्शन में भी नहीं है। इस स्ट्रेट पोजीशन में अगर आप गौर देखें तो इसके अंदर ना ये हमें मैच कर रही है और ये दोनों बिल्कुल बैक टू बैक कर रही हैं। और हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द criteria of the reply to the question number 12, that is option number C. Dear students, we proceed to the question number 13. What would be the accurate reply to our question? Here we see यहाँ पे जनाब सिंगल एक लाइन थी, इस लाइन को यहाँ पे उन्होंने डबल कर दिया, यहाँ पे ये डबल हो गया, यहाँ पे ये ट्रिपल टाइम पे आ गई है। ठीक है, आगे हम गौर से देखते हैं, यहाँ पे फिर 4 थी, 4 के बाद जनाब यहाँ पे इसकी 5 साइड्स होंगी। ठीक है, ये 5 साइड्स वाली है और यहाँ पे देखें तो ये फिर 4 साइड वाली है और आगे देखें तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे ये 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स के बाद आपको ये सिंगल साइड मिल रही है। तो अब हमने गौर से देखना है कि आपका जो दुरुस्त जवाब है वो कौन सा होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे ये जो सिंगल साइड है यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे देखें तो कौन सा रिप्लाई आपका बनता है। हम नीचे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो हमें इसका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। अब हमारे पास जो मिसिंग है, जिस तरह यहाँ पे एक यू अवेलेबल था तो ये 2 पोजीशनें उसके पास ये यहाँ पे देख रहे अवेलेबल थी। अब यहाँ पे दोनों एक जैसे थे स्क्वायर्स, यहाँ पे एक स्क्वायर भी अवेलेबल था, यहाँ पे भी एक स्क्वायर अवेलेबल था।
अब हमने देखना है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। हमारे पास एक तो इस शेप की कमी है और एक हमारे पास इस शेप की कमी है। तो वो देखें ये कहाँ पे है। अगर हम गौर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये ना हमें यहाँ पे इसका जवाब मिलता है, ना हमें यहाँ पे इसका जवाब मिलता है, और ना ही हमें बी के ऑप्शन इसका जवाब है। और हमारा जो दुरुस्त जवाब है और दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो फुलफिल होती है। नाउ वी प्रोसीड। देखें, आप सबसे पहले गौर करें तो एक ऑप्शन आपके पास ये है, दिस वन इज टू दिस वन, दिस वन इज टू दिस वन एंड दिस वन इज टू विच वन। ये हमने एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन जो कि हमने नीचे वालों में से ढूंढना है कि वो ए में है या बी में है या सी में है या डी में है। अब हमने ये गौर करना है। थोड़ा सा हम इस पर गौर करेंगे तो ये वाले इसके जो हाफ पोर्शन था ब्लैक और हाफ पोर्शन इसका था वाइट, ये हमने देखा है। तो इसने एक स्टेप और लिया और जो चौथा हिस्सा है उसका वो उसने वाइट छोड़ दिया और बाकी 3 हिस्से को उसने ब्लैक कर दिया। यहाँ पे फुल उसने ब्लैक आउट कर दिया, आप देख सकते हैं, और आगे जाकर उसने बिल्कुल चारों को वाइट कर दिया। और फिर आगे उसने मूव किया तो उसका 1 पोर्शन उसने ब्लैक किया, तीनों पोर्शन उसने वाइट कर दिया। अब उसने हाफ पोर्शन ब्लैक कर दिया, दोनों उसने यहाँ पे वाइट कर दिए। अब यहाँ पे उसने 3 पोर्शन इसके बिल्कुल ब्लैक कर दिए और एक वाला ये जो पोर्शन इसको वाइट छोड़ दिया। अगले में गया तो उसने क्या किया, पूरे का पूरा इसको ब्लैक कर दिया। अब हमारे पास ये बचता है कि पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, हमारे पास इतना ब्लैक होना चाहिए कि इसके 3 हिस्से ब्लैक रहें और चौथा हिस्सा इसका वाइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसमें अगर हम पूरा पेयर देखते हैं तो वो कहाँ पे है। एक तो हमारे पास फुल जो चारों ऑप्शंस हैं वो वाइट होने चाहिए और एक हमारे पास जो ऑप्शन है उसका 1 ब्लैक और 3 बिल्कुल वाइट होने चाहिए। अब हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इसमें ये वाला पोर्शन तो पूरा हो जाता है बट ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, लिहाजा ये हमारा जवाब दुरुस्त नहीं है। तो ये दोनों, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता और ये भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। यस, ये हमारी रिक्वायरमेंट जनाब पूरी कर रहा है, ये वाला पोर्शन भी पूरी कर रहा है और ये वाला पोर्शन भी पूरी कर रहा है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्फा। Dear students, this is question number 15. So please think over that what is the odd one out from the following. ये 1 odd है, 2 odd है या 3 odd है या 4 odd है, ये आपने हमें बताना है। odd इसमें क्या होगा, देखें जी, एक सर्कल एक साइड पे है, एक सर्कल ब्लैक दूसरी साइड पे है, एक सर्कल ब्लैक एक साइड पे है, एक दूसरी साइड पे है, यहाँ पे एक साइड पे है, एक दूसरी साइड पे है। यार ये प्रिंसिपल इधर भी फॉलो हुआ, ये प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो हुआ, ये यहाँ पे भी फॉलो हुआ। But this principle is not being followed in option number, you can say 4. Therefore, we can say this is option number 4 because it's both black circles are one side and the either side is lying totally blank. So this is the right reply to the question number 15. Look here, this is question number 16. If we find out its accurate reply, that what is the odd picture from the following, we see this is option number 1 जो है बिल्कुल प्रॉपर एक शेप में है, ये भी एक प्रॉपर शेप में है और ये भी एक प्रॉपर शेप में है, बट एज फार एज दिस ऑप्शन नंबर 3 is concerned, it is not in the proper shape as the other shapes are well prepared and according to the geometric laws. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर से देखें तो एक अल्फ़ाबेट के लिहाज से अगर इस तरतीब को देखें, सबसे पहले ए आता है, फिर बी सी डी और फिर ई आ जाता है, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन, एम के बाद एन आ जाता है। ये इसको अपनी जगह पे होना चाहिए था बट यहाँ पे जेड क्यों आ गया। जेड की तो यहाँ पे जगह बन रही थी जनाब, अपनी तरतीब पे जाता ना, यहाँ पे एन हो जाता तो फिर तो ये तरतीब दुरुस्त थी और जेड भी दुरुस्त था। लिहाजा क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और इसको प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म में लाने के लिए और आपके दिमाग को चेक करने के लिए कि आप कितनी ज़हनी इस्तेदाद के मालिक हैं, इसलिए ये किया गया है। तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। लुक हियर जेंटलमैन, वंस अगेन वी कैन फाइंड आउट द ऑड वन आउट। यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल एक प्रॉपर शेप है, ये भी एक प्रॉपर शेप है, ये भी एक प्रॉपर शेप है, बट दिस वन इज नॉट प्रॉपर शेप। ऑप्शन नंबर 2 इज द ऑड वन आउट फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। तो लुक हियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास एक प्रॉपर एरो है। एरो के अंदर जो जो सिरे थे ये तकरीबन 2 पूरे हैं, यानी कि हाफ एक है, दूसरा सिरा 2 इधर है, तीसरा इधर है और चौथा इसका नीचे है। यहाँ पे एक हुआ तो ये 5वां सिरा बन गया, यहाँ पे हुआ तो ये 6ठा सिरा बन गया। अब यहाँ पे अगले पे 7 होने चाहिए थे, ठीक है जी। यहाँ पे 2 ये हो गए,
2 ये हो गए 4 और 2 ये हो गए 6 और 2 हो गए ये 8, लिहाजा दिस वन इज द रॉन्ग वन एंड दिस इज आल्सो odd one out. The correct reply to the question number 19 is option number 4. Gentlemen, if we look here in question number 20, find out the odd one out from the following figures. अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें कौन सी चीज़ एक डिफरेंट मिलती है, कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो किस शेप में है, जैसे ये एक बड़ी मुसल्लस थी तो इसके साथ ये छोटी मुसल्लस बना ली, ये बड़े प्लस का निशान था तो ये साथ छोटे प्लस का निशान बना दिया, ये बड़ा दायरा था तो साथ में छोटा दायरा बना दिया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक बीकर टाइप की शेप है। अब ये बीकर टाइप की शेप तो ये नहीं बनती है, ये बिल्कुल हाफ डी आप कह सकते हैं या हाफ सर्कल कह सकते हैं। दिस वन इज द डिफरेंट वन, odd one out from the all options. Option number 4 is the different one. Here gentlemen, if we see, अगर आप देखते हैं प्रॉपर मैथमेटिकल साइंस हैं वो कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को हम कर रहे हैं। प्रॉपर मैथमेटिकल साइन आप देखें तो ये प्रॉपर मैथमेटिकल साइन है, ये भी प्रॉपर मैथमेटिकल साइन है, ये भी प्रॉपर मैथमेटिकल साइन है, बट ये जो इस तरह का जो क्रॉस लगा हुआ है ये कोई प्रॉपर मैथमेटिकल साइन नहीं है। Therefore, option number 1 is totally different. Now again, move to the question number 22. That what is the odd one out from the following figures? Question number 22 में देखते हैं तो कौन सी चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। अब ये कर्व में है, ये चीज़ें दोनों हाफ सर्कल को काटा गया कर्व में है, ये चीज़ें प्रॉपर कर्व में हैं, ये भी प्रॉपरली कर्व में है। बट एज फार एज दिस ऑप्शन नंबर 2 is concerned, this is not in the curve shape, it is a just single straight line with head and foot. Therefore, this option number 2 to the question number 22 is odd one out for the accurate reply to the said question. फिर भी आपको इसमें ऑड वन आउट बताते हैं, जिस तरह वो हम पहले प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे कि इसको हम कौन सी शेप दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते हैं। देखें जी, आपकी जो डिफरेंट शेप्स बन रही हैं 23 ऑप्शन के अंदर, एक तो ये प्रॉपर शेप बन रही है, ये भी प्रॉपर बन रही है और ये भी प्रॉपर बन रही है, बट एज फार एज दिस वन इज कंसर्न, दिस इज द टोटली डिफरेंट। एंड दिस ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज द राइट एंड एक्यूरेट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। फिर वही बात है, हमने इसमें भी ऑड वन आउट देखना है। ये ऑड वन आउट यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाली एक प्रॉपर अपनी शेप में है, ये प्रॉपर अपनी शेप में है, ये प्रॉपर अपनी शेप में है, बट दिस वन इज द टोटली डिफरेंट। द एक्यूरेट रिप्लाई इज accurate reply to the question number 24 is option number 2. This next question, if we see here, कि यहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग के साथ बनी हुई है, एक वाइट आप कह सकते हैं स्क्वायर के अंदर चीज़ें हैं और अपनी जगह पे ये प्रॉपरली मूव कर रही हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है और ये इन तमाम जो बाकी 3 अशकाल हैं इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा आपका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 टू द क्वेश्चन नंबर 25. All new viewers are humbly requested to subscribe our channel Shine Leaders Academy Rawalpindi for your new videos, and I would request to the all viewers, honorable and respectable viewers of Shine Leaders Academy, to click on bell icon to have the fresh and the latest videos of general knowledge, current affairs, intelligence, verbal, non-verbal, and all the tests related to the commissioning of Pakistan Armed Forces in any cadre or in any rank, right from their to the other ranks to the superior ranks of the commission officers being selected through selection boards and as well as through the ISSB. So all are humbly requested to like, share our videos with their friends, with their colleagues, and spread these videos in the different groups for the betterment of the people who want to learn something. So this is a forum, Shine Leaders Academy, where you can get the free education while sitting at your home. So our prayers are always with you. May Allah Almighty bless you and succeed you in your all the tests. So keep one thing in your mind, that without hard work there is no success. The only key to success is your determination and your way of doing the work, and your self determination and your resoluteness is totally concerned for your success. If you put your level best, so Allah Almighty is there to help you. There's a very natural and the very golden phenomena. God helps those who help themselves. Once again, I shall request to the all
audience as well as to the viewers to like and subscribe our channel. So this channel is providing you an ample opportunity to learn the intelligence test, English, mathematics, physics, general knowledge, current affairs, and related to the all subject matters which is being, you can say, you are appearing in the different test where you will come across such questions. So inshallah, you would succeed by observing, by watching our videos, and for the preparation of the all test of Pakistan Defence Forces. So our prayers and best wishes are always with you. May Allah Almighty bless you with the success. Ameen. Pakistan Defence Forces, live long. Pakistan Zindabad. Pakistan Paindabad. Allah Hafiz. Inshallah, we shall meet in the next video very soon. Thank you very much.